5 days while a boy and 2 girls can same लॉजिक पे करो, जो सीख रहे वही करना है. टोटल वर्क क्या हो जाएगा? (10b minus 6b). This is 12g minus 5g. So 4b equal to 7g. So you got b by g ka ratio. Fine. Now it says that a boy is paid at the rate of $28 a week. What should be the wages of the girl per week? So simple value देखो, 7 की वैल्यू दी हुई है $28, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Is it clear? Yes, no? जो रेशियो है उसी प्रोपोर्शन में तो पैसा बटेगा ना. तो अगर ये एफिशिएंसी है तो पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा. तो अगर इसको $28 मिलता है तो इस रेशियो में मिलता है, इसलिए. Is it clear or not? Yes, sir. Sir, please repeat this point. I said कि the money distributed according to the proportion of your work, right? So your work Yes. is defined by the efficiency. If one boy can do 7 units per day, and hence he is getting in a week $28. So if a girl is doing 4 units per day, she should get accordingly in the same proportion the money, na? Yes, sir. Yes, Right? So that's what we have done. Is it clear to everyone or not? Yes, sir. Yes, sir, clear. कर लिया और एक समझ आ गई है होपफुली कि करना क्या है और के केस में एंड ऑल. एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं जो कि तुम लोग बहुत किया है, बहुत, मतलब ये इतना हमने पढ़ लिया है कि कुछ भी आ जाए बन जाना चाहिए. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, समझो एंड बताओ. ये हमने लास्ट डे जो किया था ना फूड वाला, लास्ट कुछ उसी तरह का है, बट थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाके है. बट लॉजिक चीजें वही है, कुछ नया नहीं हम सीख रहे हैं, बस लैंग्वेज अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, जिसको हम दिखाएंगे भी अलग तरीके से. Contractor, how to deal with this kind of problem? A contractor undertakes to complete a work in 130 days. ठीक है, उसको खत्म करना था 130 days में. He employs 150 men for 25 days and they complete 1/4 of the work only. 25 दिन के बाद. Imagine, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे. Imagine one man can do 1 unit of work per day. So one, मतलब work done by worker, work done, that is 1/4 of total work. कितना है? ध्यान से समझोगी. मैंने बोला 150 लोग काम करें, so 150 men can do 150 unit per day. Yes, no? If one man can do 1 unit per day, then 150 men can do 150 units per day. Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And this way, if they are continuing for 25 days, this represents 1/4 of the total work, right? 1/4 of the total. यहाँ से total work तुम निकाल सकते हो चाहो तो. 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 part. So total work should be 4 times of this. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Total work must be this, no? इतना ही हो इस. I don't know whether this will be useful to us or not because मैंने अभी question आगे नहीं पढ़ा है. But I'm just telling you how to calculate total work. If a data is represented in a language like this, right? He then reduces the number of men to 100 who work for 60 days. All right. So ये first lot of work है, इतना हो गया, total इतना करना था. Next work done कितना होगा? Next work done कितना होगा? तुमसे बोला है कि 100 men कर दिया, तो एक दिन में 100 यूनिट काम होगा और ऐसे 60 days तक काम हुआ है. Are you understanding or not? You can multiply it for a better understanding. So कितना काम हो गया? 25 into 15, 3750 units. What is total? Total is nothing but 100. So 20, 15,000 work. Right? This into 4 clearly. And next round का work done how much? 6,000 units. Right? It says after which there are 10 days holiday. काम ही नहीं हुआ. Holiday का मतलब काम ही नहीं हुआ. So this day का जो output है, next 10 days output 0 units. Yes, no?
यस नो? Yes, sir. ठीक है. How many men must be employed for the remaining period? Remaining period का मतलब 130 days में जो बचा हुआ टाइम है to finish the work. मतलब क्वेश्चन क्या है? अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना है ये निकालो. रिमेनिंग वर्क है 15,000 माइनस 3750 प्लस 6,000 प्लस 0 कितना हो गया? यस नो? यस नो? Yes, sir. टाइम कितना बच गया? 70 20 95 35 डेज बच गया. तो 35 दिन में इतना काम करना है. मेन पूछा है. मेन मतलब नहीं पता कितने मेन चाहिए. राइट. इनटू 35 डेज कि काम हो जाए 5250. इज इट क्लियर और नॉट? This is being asked according to question. This is asked how many men need to finish the same work, remaining work in 35 days. Is this equation clear to everyone here or not? Yes, no? Yes, sir. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू आप जानते हो. मैंने बोला एक मैन एक दिन में एक यूनिट करता है. 1 यूनिट. राइट. m इक्वल टू 1 एज्यूम 1 यूनिट पर डे. हमने एज्यूम किया पहले ही. ये मैं फिर से बोल दे रहा हूं. तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 से कटता है सीधे सीधे 35. 175 कटता है. 35 से कम 35 और फिर 35 पर 6 175. 150 150 men will be needing to complete the task. Is it clear or not? Everyone. Yes, sir. Clear. बोलो. This was a new but a very good question. You have to understand the language. मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है. बट क्या किया है ना? मैंने बस इसको अच्छा ओके 100 लोग थे. सो एक्स्ट्रा मैन नीडेड ये पूछा है. एक्स्ट्रा मैन नीडेड कितने लोग? 50. 50 extra more men need to join the work. This is your answer, not this one. 50 extra men. 100 तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इसको दो तरह से इक्वेशन बन सकता था. मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हूं दिस वुड हैव बीन लाइक दिस आल्सो 100 प्लस क्वेश्चन मार्क इनटू m इनटू 35. समझ में आ रही है बात? और फिर अगर सॉल्व करते क्वेश्चन मार्क तो यह 150 नहीं सीधे 50 आ जाता. इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये 100 नहीं लगाओगे तो 150 आया माइनस कर दोगे 100 में. बट अगर ये 100 ऐड कर दोगे और फिर इक्वेशन बनाओगे 100 प्लस क्वेश्चन मार्क इनटू m इनटू 35 इक्वल टू 5 तो m की वैल्यू डायरेक्टली 50 आ जाती. इज क्वेश्चन मार्क की वैल्यू. इज इट क्लियर और नॉट? So you just have to learn to represent data nicely. I'm not doing anything. I'm just reading the English and proceeding accordingly. जो जो बोला है मैं वो करते जा रहा हूँ. अपने आप सॉल्व हो रहा है. राइट. तो आपको समझना है टोटल है कितना हो गया, बाकी क्या है, रोज क्या होता है. रोज 100 लोग तो काम कर ही रहे थे तो 100 में आप बढ़ गए. राइट. विल डू 1 और 2 पाइप का क्वेश्चन एंड विल फिनिश. तो पहले इसको करते हैं. चेंज कर रहा हूं पेज. आई होप यू हैव नोटेड इट. इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज. ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा. 90 seconds from my side to you to solve this question. A piece of work in 45 days, but Bharat can do the same work in 5 days less than Amit. So Amit takes 45 days. Bharat takes 40 days clearly, 5 days less when working alone. Amit and Bharat both started the work, but Bharat left after some days. Okay. And Amit finished the remaining 56 days with half of his efficiency. मतलब हाफ ऑफ एफिशिएंसी से 56 डेज में रिमेनिंग वर्क करता है. इसका मतलब अपनी वो नॉर्मल अगर कैपेसिटी से करता तो 28 डेज लेता. यस नो? एफिशिएंसी अगर डबल हो जाती तो टाइम आधा लगता. यस नो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So left after some days Amit finished in 56 days with half of his efficiency. But ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है. But he did the work with Bharat with his complete efficiency. अच्छा ठीक है. नहीं चलो तो भरत के साथ जब तक काम किया था बोल रहा है तब तक फुल एफिशिएंसी थी. एग्जैक्टली वो तो हम पहले ही समझ गए थे. झूठ मूठ का ये आगे का लैंग्वेज है कंफ्यूजन करने के लिए. तो एलसीएम ले लिया.
360. So 8 यूनिट पर डे, 9 यूनिट पर डे. फाइन. बोल रहा है दोनों ने साथ काम किया, तो पर डे का आउटपुट क्या आ जाएगा, दोनों अगर साथ करेंगे तो. ठीक है, 17 यूनिट पर डे का काम होता है. बोल रहे हैं वर्क टुगेदर लेफ्ट आफ्टर सम डेज. मुझे नहीं पता, यही सम डेज पूछा है, ये सम डेज ही पूछा है. इमेजिन टी डेज, लेट्स से दे वर्क टुगेदर फॉर टी डेज. तो 17 यूनिट इनटू टी डेज प्लस प्लस कौन चला गया, हु लेफ्ट, बी इज गॉन. B. बी इज गॉन, हमें ये क्वेश्चन मार्क या टी चाहिए. तो बी इज गॉन, सो ए इज वर्किंग, बट ए इज वर्किंग विथ half of his efficiency for 56 days. Is it clear or not? This line is clear or not? Yes, sir. इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना, ये सीख गए हो, जॉब इज डन. तो बस यही तो तुम्हें करना था. अब सॉल्व नहीं होगा, इजीली होगा. ए की वैल्यू पता तुम्हें नहीं होगा. टी इज इक्वल टू, इफ पुट ए इक्वल टू 8, दिस इज 4 इंटू 56. 4 इंटू 56 का मतलब 112 224. कितना हो गया, 136 बटा 8. So they together worked for 8 days. After that, B left and A took 56 more days when he was working with just half of his efficiency to finish the work. Is it clear or not? Yes, sir. All of Yes, you? sir. Huh? Yes, sir. चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट, सेम लॉजिक है, कुछ अलग नहीं है. A water tank is 2/5 full. Pipe A can fill 10 minutes, pipe B in 6 minutes empty. ये देखो, A पॉजिटिव वाला है 10 minutes, B नेगेटिव वाला है 6 minutes. LCM लिया 30 यूनिट्स मान लो टोटल था, तो ये +3 भरता है और ये -5 खाली करता है. ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा -2 यूनिट पर मिनट. हर मिनट में 2 यूनिट खाली हो जाता है अगर ये टुगेदर काम करते हैं. और टैंक कितना खाली करना है, सो टैंक जो था वो 2/5 था भरा हुआ, इसको -2 करके खाली हो रहा है, तो डेफिनेटली खाली होगा. नाउ 2/5 ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 12/2, दैट इज 6 मिनट्स लगेगा पूरा खाली करने में. इज इट क्लियर और नॉट? यस, नो, क्विक Yes, sir. क्विक रिस्पॉन्स भाई एवरी नहीं है. Yes, sir. Clear है. बोला 6 घंटे में टैंक भर जाता है, हाफ फिल था मतलब 3 घंटा चल चुका था, हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, 3 hours. और ये एक टाप की बात है, एक टाप ध्यान से अकेले पढ़ोगे हो जाएगा, 6 घंटे में भरता है. 90 seconds Right. from my side अब to ध्यान you. से समझो, कुछ to भी मान solve लो, this मान लो question. टैंक की जो कैपेसिटी थी, कुछ भी मान लो, चलो टैंक्स कैपेसिटी सिंपल समझो. वैसे ये क्वेश्चन को मैथ्स लगाना ही नहीं है, दिस इज हलवा, मतलब मेंटली पहेली है ये. मैंने मान लिया 12 यूनिट्स, 6 hours है ना, इसलिए 6 का मल्टीपल ले लिया, तो टैप्स कैपेसिटी कितनी हो गई, और टैप्स कैपेसिटी बोला 12 यूनिट को 6 घंटे में भरता है, तो 2 यूनिट पर आवर होगा ना. यस, नो, Yes, sir. 2 यूनिट पर आवर हुआ. तो हाफ फील्ड का मतलब, हाफ फील्ड का मतलब 6 भर गया, हाफ का मतलब 12/2 भर गया, तो 6 खाली है ना. Yes, sir. तो अब बोल रहा है बाकियों को भरने के लिए 3 सिमिलर टैप्स आर ओपन, तो रिमेनिंग वाटर अपॉन 4 टैप्स पर आवर, यही चलेगा ना. तो रिमेनिंग कितना बच गया, इतना यूनिट, और एक टैप भरता है 2 यूनिट, तो 4 टैप कितना भरेंगे, 8. 6/8 मिनट्स, सॉरी आर. 6/8 आर का मतलब क्या होता है, 45 minutes. So it will take 45 more minutes to fill the tank completely. Is it clear or not? Total time पूछा है, so total time क्या हो गया, पहले 3 घंटा लग चुका था आधा भरने में. Is it clear or not, everyone? Clear. ये रहा, अभी आ गए इस क्वेश्चन पे.
बोला सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर, 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन बोला 2 घंटा ज्यादा लिया बिकॉज इसके अंदर एक बॉटम था। मान लो लीक को मैंने बी बोला और जो टैप है जिससे भरता है उसको ए बोला, तो ए अकेले 8 आवर्स में भरता है, लेकिन जब ए का साथ बी दे रहा था तो 10 आवर्स लगा। यस नो? यस नो? Yes, yes, sir. तो 40 लीटर्स का टैंक था, तो ये 5 यूनिट करके ए भर सकता था, लेकिन जब ए के साथ जैसे ही बी आया कितना भरा है? 4 यूनिट भरा ना, 4 यूनिट। ये एक इक्वेशन है, ए प्लस बी इक्वल टू 4, तो ए प्लस बी एक की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस बी इक्वल टू 4, सो बी की वैल्यू कितनी हुई? -1। -1. लीक क्या कर रहा था? 1 लीटर पर आवर एम्प्टी कर रहा था। क्लियर है नहीं है Yes, sir. ऑल ऑफ यू? तो Yes, sir. बोला है कि अगर सिस्टम फुल है, मतलब पूरे 40 लीटर पानी है, तो इसको कितनी देर में लीक खाली करेगा? कितना? 40 hours. 40 लीटर टोटल है, 1 लीटर 1 घंटे में खाली होता है, तो 40 लीटर खाली करने में कितना लगेगा? 40 लीटर। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? यस नो? Yes, sir. सही है। सही, यहाँ पे +5 और +4 कैसे आया था? 8 आवर्स में 40 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? और 10 आवर्स में 40 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 40/8, 40/10। ओके सर, आ गया। क्लियर है ना? मुझे लगता है Yes, ये sir. आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे। आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट ये बिल्कुल सेम है। बोला एक लीकेज था, है ना, लीक विच एम्प्टी सिस्टम 20 मिनट में, लेकिन एक टैप था जिससे पानी ऊपर से भरा, मतलब ये है। बोला ये भरा हुआ पानी 20 मिनट में खाली कर देता है ये, लेकिन ये ऊपर से नल भर दिया, ये भरा था, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, 4 लीटर, तो 24 मिनट लगे। सेम लॉजिक ले लो, ए का कैपेसिटी 20 और ए प्लस बी की कैपेसिटी 24,